So you can. So we are now ready to write down the vector gravitational force in vector form. So let's see the force exerted by M1 on M2 is. So you can write here F21 is equal to G times M1 into M2 by R21 cube into R21 vector. Now you can write the equation like this. Okay. How it is true? So let's see. Now this equation can be written as F21 is equal to G M1 M2 by R21 cube into R21 into R21 cap, because a vector can be written this form, the magnitude of the vector into its unit vector, right? So you can cancel this one and you will get here F21 is equal to G times M1 M2 upon R21 square into R21 cap. So this one is the equation and you can use this equation. This equation is very important and this is known as the Newton's law of gravitation in vector form. This one is the equation for the force, that is the force that exerted by M1 on this mass M2. Now you can see here in these two, R12 and R21 are equal in magnitude, but they are opposite in direction. Here you can see. So now I am going to write F21 and F12 together, and let's see what is the relation between F21 and F12. So before I am going to write that relation, you should note it down in your copy. Okay, so pause your video and note it down. I am going to erase this part so that I can proceed further, right? So since we know that we know that F12 is equal to G M1 M2 by R12 square R12 vector, equation number suppose 1, and F21 is equal to G M1 M2 upon R21 square R21 cap, equation number 2. Okay. So now since you can see these two vectors, so also we can write here vector R12 is negative times equal to R21, right? You can write like this because these two are equal in magnitude but opposite in direction. So you can note down R12 is equal to minus R21. So you can write here R12 vector, R12 unit vector is equal to minus R21 vector and R21 unit vector. So since these magnitude of R12 and R21 are equal, so these two are cancelled and you get R12 cap is equal to minus times R21 cap. You can write like this, R12 is equal to minus times R21. You can write like this. Okay. So now we can replace either this part or this by using equation number 3. So now I am going to use the value of this R12 in equation number 1 and we get the required result. Okay. So for this I need to erase this part of the board. So before I am erasing that, you should note it down in your copy. So pause your video and note down. I am going to erase this part
so that I can proceed for the required result. Okay, so I am erasing this part, and I am going to use R at the place of R12 minus times R21. So here, using 3 in 1, we get F12 is equal to G M1 M2 upon R12 square into R21 negative. So now you can write F12 equal to minus G M1 M2 upon R12 square into R21 cap. So you can see this value is of vector F21, but this should be R21. Since you know that R12 and R21 are equal to each other, so you can write here R21. So you can note down F12 is equal to minus times G M1 M2 upon R21 square into R21 cap. So now you can see this part of the equation is F21. So you can write F12 equal to minus times F21. Okay. So this is the required result. This is the relation between the force exerted by M1 on M2 and M2 on M1. The relation between these two forces are F12 is equal to minus times F21. This proves that both are attracted to each other. Both of them are applied one force on each other, right? You can say this one is Newton's third law. So sometimes there is a question prove that Newton's third law is there in the case of the gravitation. So you should prove this part. That is, suppose this is equation number 4. You can write here 4. If you write down this equation number 4, this proves that this is true. Means Newton's third law is true in case of the gravitational force also, right? So this one is the very important question. Now we are ready to study about the principle of forces, principle of superposition actually. Okay, so topic is principle of superposition of force. So let's see principle of superposition of force. This is the topic. Actually principle यहाँ पे है, सिद्धांत से related है ये. This is not related to the chief one. Okay, this one is related to सिद्धांत. So the spelling is given here. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स. ओके, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहाँ भी देखेंगे. इसको और डिटेल में पढ़ना है तो और भी जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ भी हम लोग देखेंगे. सपोज यू हैव n masses, okay, and the distance among them is, this one is the first, second, third, fourth and nth, right? So यहाँ पे सपोज ये 0 थे, चलिए इसको फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. तो इसको R12 बोल देते हैं. फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस है R13, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है
R14 और यहाँ से R1n। तो देखिए ये जो मास है जो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, ये जो मास है जिसको फर्स्ट बोल रहे हैं इसको m1 मास बोल देते हैं। ये m2 है, ये है m3, ये है m4, ये है m5। तो ये मास इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेट कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा यही हमको बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो देखिए ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स इधर लगेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फिर इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस पे लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे लगाएगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये एक लगेगा F1n सॉरी 1 2, फिर यहाँ पे 1 3, यहाँ 1 4 और यहाँ F1n। ठीक है, NH फोर्स लेंगे तो नेट फोर्स जो इस पे लगेगा, सो F नेट इज वेक्टर सम ऑफ F12 प्लस 1 F13 प्लस F14 प्लस F1n टाइप का लगेगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स गिवन होंगे और आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे और आपको एक रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट होगा जी m1 m2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्क्वायर R12 कैप, ओके, प्लस जी m1 m3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, प्लस जी m1 m4 R14 स्क्वायर, इन सभी वेक्टर्स के स्क्वायर R14 कैप, एंड फाइनली NH वेक्टर के लिए लिखेंगे जी m1 mn R1n स्क्वायर R1n कैप। ठीक है, इतना लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए सभी से कॉमन क्या है, सभी से जी m1 कॉमन हो गया। ठीक है, जी m1 कॉमन हो गया तो आप एक सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर आप इतना ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इसको और अरेंज करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसको और अरेंज करके क्या लिखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करना होगा ताकि हम लोग आगे के स्टेप्स लिख पाएँ, इक्वेशन को और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रीअरेंज कर पाएँ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सभी टर्म से कॉमन है हमारे पास जी, हमारे पास जी m1 कॉमन है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा m2 बाई R12 कैप प्लस m3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस m4 अपॉन R14 कैप एंड फाइनली mn अपॉन R1n कैप। ऐसा मिलेगा इक्वेशन। ओके, सो आप इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। जी m1 सिग्मा I is equal to 1 to n mi upon r 1 I vector R1I cap। तो जिन लोगों को वेक्टर फॉर्म समेशन के फॉर्म में लिखना आता है वैसे लिख सकते हैं। देखिए आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन फर्स्ट टर्म आएगा आपका 2m2 बाई R12 कैप प्लस यहाँ पे 3 आएगा 3 अपॉन R13 कैप, ऐसे ही nth टर्म तक आपका चला जाएगा। तो ये है इक्वेशन इन समेशन फॉर्म। लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के आसपास हो तो कोई एक पार्टिकल n-1 जो पार्टिकल्स हैं उन पे कितना फोर्स लगाएगा उसके बारे में ये प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड और न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है।
तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ने के बाद हम लोग चल रहे हैं अपना अगला टॉपिक पढ़ने, जो है वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो यहाँ पे जी क्या है? जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जनरली आपने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ये तो ट्रू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। बट अगर आप देखें तो जी की वैल्यू एक्चुअल में जो होती है वो अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है, और हाइट के साथ भी वेरी करती है, डेप्थ के साथ भी इसका वेरिएशन है। तो हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, उसके बाद डेप्थ, उसके बाद अर्थ किस शेप पे कैसे डिपेंड करती है, और रोटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी। फर्स्ट आप बोल सकते हैं विथ हाइट, तो ये फर्स्ट हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी में, कि कैसे डेप्थ के साथ वेरिएशन है, कैसे अर्थ के शेप के साथ वेरिएशन है, कैसे रोटेशन पे कैसे ये डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। ओके, तो देखिए हाइट के साथ कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सपोज कर लीजिए कि ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ, इसका सेंटर यहाँ पे ओ हो गया, और ये जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर ई। ठीक है, ये आर ई रेडियस हो गया। अब यहाँ से देखिए, सपोज करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एम तक ले आते हैं, और ये है ऑब्जेक्ट का पॉइंट, ये तो हो गया, इसको पी और इसको क्यू बोल देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को एम पे रखा था, अब यहाँ पे क्यू पे रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को पहले पी पे रखा था, अब क्यू पे रखा हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट जो है वो है एच, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की आर ई है। तो ये टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स। सपोज कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। पी क्यू कितना है? पी क्यू है एच, और ओ पी कितना है? ओ पी है आर। इतनी चीजें हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है। और ये क्या है? ये अर्थ है। अर्थ का मास एम ई, जिसको हम लोग सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान रहे हैं, पॉइंट मास जैसा, ठीक है। तो हमें करना क्या है? हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो सबसे पहले हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी पे, फिर जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्यू पॉइंट पे, फिर देखेंगे कि कैसे इन दोनों की वैल्यूज में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है कि F इज इक्वल टू होता है जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे होगा। तो फॉर पॉइंट पी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो F इज इक्वल टू एम जी फॉर द सेम पॉइंट। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है तो हम लोग जो फोर्स लग रहा है अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच, उसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में, F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर। एक बॉडी अर्थ हो गया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के इक्वल। दूसरा, अर्थ जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करती है वो होगा उसका वेट mg। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका वेट सेम होना चाहिए, इसमें दोनों इक्वल। तो दोनों इक्वल होगा तो कितना होगा? mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए m कैंसिल, तो कितना बचा? g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हमारा। और ये देखिए एक फार्मूला बन गया कि जो g की वैल्यू होती है वो g इंटू एम ई, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे देखेंगे तो ये g क्या हुआ? g इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर टाइप, ठीक है। अगर डिस्टेंस आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज इससे ग्रेटर होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो ये कहाँ पे है? ये किस लिए इक्वेशन बना? ये फॉर पॉइंट पी बना, फॉर पॉइंट पी के लिए। तो ये सही है। तो ये केस फर्स्ट में आपको जी की वैल्यू मिल गई, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। जब
आपका मास यहाँ पॉइंट बी पे है, सेंटर से, मतलब कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस है आर ई के इक्वल, इतना आ गया। अब देखिए, अब क्या है कि जब इस मास को लिफ्ट किया गया क्यू पॉइंट तक तो क्या होगा देखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एम इज लिफ्ट टू पॉइंट क्यू, या फिर लिख सकते हैं फॉर पॉइंट क्यू, तो यहाँ लिखेंगे फॉर पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू के लिए देखिए क्या होगा, पॉइंट क्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं जी डैश, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जी की वैल्यू जी डैश है, तो पॉइंट क्यू के लिए लिखेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन डिस्टेंस, देखिए अब कितना हो गया है एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे आपको जी डैश की वैल्यू मिल रही है हाइट एच पे, और जी की वैल्यू मिल रही है अर्थ सरफेस पे, ये दोनों मिल रहा है आपको इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि क्या होगा, कैसे जी की वैल्यू को, जी डैश की वैल्यू को जी के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। So from equation number 1 and 2, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, जी डैश बाई जी लिखते हैं, कितना आएगा देखिए, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप। ये देखिए जी एम ई कैंसिल, ये आर ई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये कितना हुआ, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते रहिए चीजों को, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, जी डैश इज इक्वल टू आएगा जी टाइम्स, इसको चाहे इसको अपॉन में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इस आर ई को 1 बाई आर ई प्लस एच अपॉन आर ई लिख सकते हैं। तो इसको और लिख सकते हैं आप जी इंटू 1 अपॉन, ये हो गया 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर ई टू दी पावर -2। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसी को 3 कर देते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ध्यान से देखिए, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर ई टू दी पावर -2, ये आपका रिजल्ट है। अब आप इस फॉर्मूले को किसी भी कंडीशन में अप्लाई करके आप जी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है ये जी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि एच की वैल्यू आर ई के इक्वल हो जाती है, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे अगर एच की वैल्यू आप आर ई लिखेंगे तो यहाँ पे आर ई अपॉन आर ई हो जाएगा। तो नोट करके एक लिख देते हैं आपको। इस क्वेश्चन नंबर 3 का और भी यूज है, पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ एच इज इक्वल टू आर ई, मतलब कि अगर आप सरफेस से आर ई हाइट पे जितना रेडियस उतना ही ऊपर चले गए तो क्या होगा। तो देखिए जी डैश आएगा जी 1 अपॉन 1 प्लस आर ई बाई आर ई स्क्वायर लिखेंगे आप। इसका मतलब होगा जी इंटू 1 अपॉन, यहाँ देखिए 1, ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स ये होगा जी बाई 4, ठीक है। इट मीन्स अगर आप अर्थ के सरफेस से अर्थ की रेडियस की इक्वल हाइट पे चले आते हैं, इधर कहीं आते हैं,
तो g की वैल्यू 9.8/4 हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज हुई। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपने ये बात समझ लिया कि कैसे ये डिक्रीज हो रहा है। ये फैक्टर एक्चुअल में g की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अब कुछ स्पेशल केस है जिसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक केस है जो कि इम्पोर्टेंट है। केस ये है कि इफ h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, अगर ये बहुत कम हो तो क्या होगा, तो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं वन टर्म के लिए n की, और हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा अगर इस h की वैल्यू आर से बहुत कम है तब ये यूज करेंगे आप, ठीक है। अगर ग्रेटर है, इक्वल है तो नहीं कर सकते। तो ये केस सिर्फ तभी यूज करेंगे जब ऐसी कंडीशन कभी गिवन हो क्वेश्चन में। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी, यहाँ पे आएगा 1 प्लस, अब देखिए पावर है -2 इंटू एक्स की जगह h बाई आर ई है, h बाई आर ई लिख देंगे। तो ये आएगा g इंटू 1 - 2h बाई आर ई। तो कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें यूज किया गया ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है इसका फर्स्ट टर्म तक से लिया गया है। यहाँ पे हायर ऑर्डर पावर को नेग्लेक्ट किया गया है क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत ही कम होती हैं, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये वैल्यू कैसे कम हो रही है। यहाँ पे देखिए जब आप फाइनल वैल्यू मिलेगी तो g माइनस जी इंटू 2h बाई आर ई, कुछ पॉजिटिव वैल्यू उसमें से सब्सट्रैक्ट करने पे g डैश की वैल्यू मिलेगी। मतलब g डैश जो मिलेगा वो g की वैल्यू से कुछ सब्सट्रैक्ट करने पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि g डैश की वैल्यू कम है g से, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया गया है। इसलिए आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इफ वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट above from the earth's surface, then in all the cases value of acceleration due to gravity will be decreasing। सभी केस में वो डिक्रीज ही करती रहेगी, मतलब कि कम होगी। जब भी आप सरफेस से ऊपर चलेंगे तो जी की वैल्यू वेरी तो करेगी, लेकिन वेरी में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो यहाँ पे आप श्योर हैं कि वेरिएशन होगा, और साथ साथ वेरिएशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। तो इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखिएगा। वैसे आप कोशिश करिएगा ऑलवेज इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करें ताकि यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये केस इसलिए बताया गया क्योंकि अगर डेरिवेशन में पूछा गया तो फिर आप इसको डिराइव कर पाएंगे इस केस की हेल्प से। ये बायनोमियल एक्सपेंशन चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब और कंडीशन देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि h की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। देखिए h की वैल्यू 0 होने का मतलब आप अर्थ सरफेस पे पहुंच गए। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि नोट में क्या क्या है। इफ h इज इक्वल टू आर ई, तो अभी अभी आपने देखा g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g डैश हो जाएगा g/4, अभी अभी देखा फर्स्ट में। सेकेंड में क्या होगा, इफ h इज इक्वल टू 0 देन g डैश बिकम्स g। देखिए आप सरफेस पे आ जाएंगे, यह 0 हो जाएगा तो आप यहाँ आ जाएंगे, g की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये दो केसेस हो गई। थर्ड हो गया इफ h इज इक्वल टू r/2, तो क्या होगा। अब देखिए अगर h की वैल्यू r/2 के इक्वल है तो यहाँ पे r/2 लिखेंगे, ठीक है। r/2 जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, इट मीन्स ये हो जाएगा 3/2। तो ये g डैश कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू g/1 प्लस r/2re होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये आएगा g बाई, ये कैंसिल, ये होगा 3/2 होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/9g। तो यहाँ पे g डैश कितना आ जाएगा, तो g डैश हो जाएगा 4/9 टाइम्स 4/9 टाइम्स g। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन सभी केसेस में g की वैल्यू h की वैल्यू 0 है तो इक्वल है, अदरवाइज r है तो g/4 और r/2 है तो 4/9g है। तो ये सभी वैल्यू जो है g से कम ही होती जा रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे आप हाइट पे चलेंगे
तो ये जो जी डैश है इसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है, और सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इससे ऊपर चलेंगे तो कम होगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये था वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ में आया है, तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास कांटेक्ट नंबर है, तो आप उस पर ज़रूर करिएगा अगर कोई डाउट होता है। अदरवाइज आप इसको जो है अपने से प्रैक्टिस करिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी को ज़रूर इसको समझ जाएंगे, कर लेंगे। बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको दो बातें समझनी है कि जी की वैल्यू सरफेस पे निकाल देना है और जी की वैल्यू हाइट एज पे निकाल के दोनों को डिवाइड करके ये रेशियो निकाल देना है। और आपको ये समझना है कि ये जो फैक्टर है ये जब भी करेगा तो इस जी की वैल्यू को कम ही करता है ये फैक्टर। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप समझ गए कि ये फैक्टर इस जी की वैल्यू को कम कर रहा है, इट मीन जी डैश जो है वो क्या हो रहा है, जी से कम है। यही इस पर इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया। ओके, देन हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। ओके।